in this meeting. Today's topic is material and happiness. So are you comfortable now? Ready for the meeting? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. So we can start by discussing that what actually the happiness is. Happiness होता क्या है? Whether the happiness is material, that is a car, bungalow, ornaments, or it is post you possess, power you have, whether is it relation, what is the happiness? Happiness क्या है? देखिए, what do you think? कार, सपोज मिस्टर साहिल पूर्णिया, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. हाँ, whether car gives happiness, Yes, sir. whether bungalow, Mr. again Sahil, you have a big bungalow, it gives happiness, Yes, sir. and Deepika, Deepika, you are present. Yes, sir. You have large ornaments, whether they gives happiness. क्या सर? If you have lot of ornaments, whether these ornaments give happiness. सर हैप्पीनेस वो होती है जिससे हमें ये नहीं कि सर हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, ये सब कोई मैटर नहीं करता सर. Okay. जैसे Mr. Sahil is saying, car gives happiness. Suppose करिए you have a big car. You have a car, some Maruti car, and your friend is having Mercedes. Sahil, you are having Maruti car, and your friend is having Mercedes. Will you feel something unhappy? नो सर. Sahil, Yes, sir. and suppose now you have Mercedes, and when you are in the Mercedes, your dream is to have the Mercedes. Suppose you are in the Mercedes and you listen some bad news that because of the corona in your family something has happened. Whether the Mercedes will give happiness? Sir, Hmm? sir, that नो is सर. not related to Mercedes then. If something is happening to my family, हाँ, both are different, sir. So हाँ. one provide luxury, one provide other happiness. No. So at that time, if car was the happiness, so where it It is has a gone? part of happiness. So it means car is not the whole happiness you are Yes, saying, sir. na? It is not entire happiness. Okay. Suppose Mr. Pardeep, Yes, sir. you have a 1 BHK house. Yes, sir. Whether it gives happiness or you dream that you should have a bungalow, big bungalow of 1000 meter. सर मटेरियल चीज कोई भी है सर, उसके पोजेशन और उसके यूज से हैप्पीनेस आएगी सर. नहीं, you suppose you are in the big bungalow, उसको आप यूज भी कर यस रहे सर. हैं, you are यस सर. using that bungalow, तो उससे श्योर सर. हैप्पीनेस. अब at that time something has happened, some bad news is there, यस सर. तो वो हैप्पीनेस कहाँ चला जाता है? नहीं सर, हैप्पीनेस तो जो उसमें रह रहे हैं उनसे है सर, हाँ, तो बेंगलोर सबकी से नहीं है, वेलबींग से. लोगों से. यू नहीं आर सर, सेइंग हैप्पीनेस बेंगलोर इज से नहीं है. with the persons living or the यस family सर. members, not the Bangalore. Means यस. you are saying यस material सर. is not happiness यस सर. and relations are happiness. You are saying good relations are happiness. Okay, आपका कहने का मतलब ये हो गया. तो सपोज करिए अब
that your mother, father, brother, you are saying these relations give the happiness, and these relations, what the relations, इनसे आपको क्या, सपोज करिए आपका भाई है और वो गुस्सा होकर आता है और आपको आपके साथ बदतमीजी बिहेव करता है, whether it will give the happiness? नहीं सर, लेकिन नहीं देगा. It means happiness is not that person, but you are saying its behavior, and its behavior means you expect, it is your expectation that you expect your brother should behave like this, you expect that your spouse should behave like this, you expect that your mother should behave like this, you expect that your son behave like this. ये expectations हैं, and if the expectations are not fulfilled, then you are not happy. So it means your expectations, and why there are expectations? Because you are attached with them. Suppose करिए you are attached with your brother, आप अपने भाई से बहुत अटैच हैं, एंड अटैच, अब मान लो सपोज करो आप खड़े हुए हैं और वो गिर गया, एंड इफ यू आर अटैच, अटैच का मतलब क्या है, सपोज यू आर, देयर इज मोबाइल इन योर हैंड और यू आर अटैच विद द मोबाइल, अब मोबाइल को कोई छीन के भाग रहा है, यू आर अटैच मतलब यू कैन नॉट बी डिटैच विद द मोबाइल, मोबाइल से आप उस तरह अटैच हैं जैसे इट इज ए पार्ट ऑफ योर बॉडी. तो जब मोबाइल खींच रहा है तो क्या हो रहा है, आप भी खींच रहे हैं उसके साथ भी, यू आर अटैच्ड. और वो ट्रेन में चढ़ गया, आप नीचे हैं, आप मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप क्या होगा, घसीटते हुए चले जा रहे हैं. इट इज बिकॉज, सो इट गिव्स पेन, नॉट द हैप्पीनेस. So attachment and expectations are also not, they give pain, not the happiness. And sometime, say someone who appreciate you, आपके फादर है, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, your friend is appreciating you, तो आप अच्छा फील करते हैं, you feel happiness or not? Mr. Santaram? Santaram is not there? Yes, sir. हाँ, suppose someone appreciate you, आपका टीचर है, आपका फ्रेंड है, आपका कुलीग है, if he or she appreciate you, will you feel happy? Yes, sir. अच्छा, अब वो आपकी निंदा करते हैं, आपको कहते हैं you are good for nothing, आपको कुछ नहीं आता, आप हमेशा दूसरे में कमियां ढूंढते हैं, आपके अंदर ब्लेमिंग एटीट्यूड है, आप, तो वो आपकी निंदा करते हैं, आपको नीचे दिखाते हैं, whether it will give the happiness? No, sir. No. It means your happiness depends upon the opinion of others. दूसरे के ओपिनियंस पर आपकी हैप्पीनेस अप एंड डाउन हो रही है. तो इट मीन्स नाइदर, इससे क्या समझ में आ रहा है, नाइदर द मटेरियल सच एज कार, बंगलो, ornaments, they gives happiness. Surely we cannot say that 100% these devices will give the happiness. मतलब ये पूरी तरह आपको अगर ये चीज मिल जाए तो आप हैप्पी हो जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. ऐसे ही आपने देखा कि कोई पोस्ट है, तो जब आपको लगे कि आप आईएएस बन गए, आपको लग रहा है आप आईएएस बन जाएंगे, तो आप हैप्पी हो जाएंगे. पर वेदर ऑल आईएएस आर हैप्पी, जितने भी आईएएस हैं सभी हैप्पी हैं? व्हाट डू यू फील मिस्टर पवन कुमार? मिस्टर पवन? यस सर. हाँ, क्या लगता है जितने आईएएस हैं देश में सारे हैप्पी हैं? हो सकते हैं सर. हैं, हो सकते हैं क्या हैं, पता नहीं है. बहुत से आपने आईएएस देखा सुसाइड कर रहे हैं, आपको देखा है आफ्टर द रिटायरमेंट मोस्ट ऑफ द आईएएस देयर लॉन्गेविलिटी इज वेरी लेस. वो या तो मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं या सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है. जो आम इंसान है वो 80-90 साल जीता है और इनका लॉन्गेविलिटी इज लेस. पोस्ट इज दैट, द मीनिंग इज दैट
The post is also not the key of happiness. Relations आपने देखा, relations causes the attachment and expectations, and they may give at most of the time pain, not the happiness. Someone who appreciates, so no one, because if you depend, your happiness depends upon the appreciation and of other, opinion of other. It means it is your weakness. आप कभी भी आप दुखी हो सकते हैं. Then question is, what is the happiness? है क्या ये? तो एक इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी, पहले एक स्टोरी, बहुत छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ, और उसके बाद फिर बताऊंगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मटेरियल एंड हैप्पीनेस. देखिए, एक गरीब व्यक्ति था, लेबर टाइप, और वो कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा था, काम चल रहा था, और वो काम से थकने के बाद में, काम करते करते थक गया, खाना खाया. जैसे सुबह 8 बजे से काम पे लग जाती है लेबर, 8 बजे से काम पे लग जाती है. लेट इट बी फॉर 500 टाइम्स, 500 ईयर अगो सम स्टोरी, कि भाई एक आम इंसान, एक आम लेबर क्लास था, और वो अपना मेहनत मजदूरी करके और 8 बजे से लेकर 12 बजे तक काम किया. फिर उसने खाना खाया, वहीं वो पेड़ के नीचे पत्थर पड़े हुए थे, उस पर सो गया आराम से. एक राजा उधर से निकल रहा था, राजा के साथ पूरी सेना थी, और सेना ने 50-60 किलोमीटर का हाथी घोड़े के साथ आ रही थी, बिकॉज इट इज ओल्ड स्टोरी. तो हाथी घोड़ों के साथ सेना आ रही है, और सेना ने देखा भाई 100 किलोमीटर चल कर आ गए हैं, अब थोड़ा आराम किया जाए. आराम करके और आगे चलेंगे, हमें दूसरे राज्य पे चढ़ाई करना है और उस राज्य को, अपने राज्य का विस्तार करना है. तो जब वहाँ पहुँचे तो पेड़ के नीचे जो वो सोया हुआ था मजदूर आदमी, उसको सैनिकों ने उठाया. उठ भाई, क्या कर रहा है? वो जैसे ही उठा, तो भाई देखता नहीं है कि राजा आए हुए हैं, वो तो सुध बुध होकर सोया हुआ था. जब उसे काफ़ी हिलाया डुलाया, उठ गया, तो तब तक राजा वहाँ पास में पहुँच गया. बोला, भाई पत्थरों पे क्यों सोए हुए हो? इतनी गहरी नींद में सोए हुए हो आप, और सुध बुध भी नहीं है, आगे पीछे क्या हो रहा है ये भी नहीं पता चल रहा है. तुम्हें तुम्हारे देश का राजा आया हुआ, वो खड़ा है, और तुम आराम से बेसुध होकर सोए हुए हो. जाके कुछ काम धंधा करो. वो उठ गया, बोला, साहब क्या काम धंधा करें? बोला, या पत्थर ही तोड़ते रहोगे, शहर जाओ, कुछ बड़ा का अच्छा काम करो, बिजनेस व्यापार करो, कुछ पैसा कमाओ. बोला, ठीक है साहब, फिर क्या करूं? क्या? और बड़ा बिजनेस करो, कॉरपोरेट सेक्टर्स में जाओ, बड़ा बिजनेस करो और पैसे कमाओ. ठीक है साहब. बोला, पैसे कमाऊंगा, फिर क्या करूं? कि घर में अच्छा घर बनवाओ, झोपड़ी पत्थरों पर सो रहे हो, थोड़ा सा घर बनवाओ जिसमें अपना कमरा हो, अपना रहने का जगह हो, पत्थरों पर ना सोना पड़े. बोला, ठीक है साहब. बोला, और मेहनत करो और पैसा कमाओ. बोला, ठीक है, फिर क्या करें? बड़ा बंगला बनवाओ. बोला, ठीक, बड़ा. बोला, फिर उसके बाद और आगे क्या करूं? बोला, फिर चैन की नींद सो. तो वो मजदूर कहता, साहब चैन की नींद तो मैं अभी भी सो रहा हूँ, और मैं तो अगर आप खुश हो और चैन की नींद सो. बोला, मैं तो अभी भी बहुत खुश हूँ और चैन की नींद सो रहा था, आपने बल्कि आके मुझे डिस्टर्ब कर दिया. तो राजा, फिर उस मजदूर ने राजा से पूछ लिया कि राजन, गुस्ताखी माफ करना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप खुश हैं? राजा ने कहा कि अभी तो मैं खुश नहीं हूँ, मुझे तो दूसरे राज्य पे चढ़ाई करना है और उसको अपने में मिलाना है. रास्ते में सारे हमारी सेना थकी हुई है, वो आराम करेगी, मुझे चैन कहाँ? तो राजा वो बोलता है कि जब सारा कुछ कमाने के बाद, सारा कुछ राजा बनने के बाद भी आप खुश नहीं हैं,
तो मैं ज्यादा पैसा कमा के कैसे खुश हो जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये, कहने का मतलब क्या है कि भाई राजा से जब पूछा, राजा द किंग वाज नॉट हैप्पी बिकॉज उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसका जो विजन था, उसका जो टारगेट था वो बहुत हाई था एंड ही वाज नॉट एबल टू अचीव दैट। वो उसको राज्य के विस्तार को बढ़ाना चाह रहा था, कई एक राज्य को मिला चुका था और राज्य को बढ़ाना चाह रहा था। उसका जो एक्सपेक्टेशंस थे वो उसको खुद नहीं मीट कर पा रहा था राजा, इस वजह से वो हैप्पी नहीं था। और ये जो था मजदूर, उसके एक्सपेक्टेशन बहुत लिमिटेड थे। गहरी नींद में सोया, उसे आराम मिल गया, पत्थरों पे ही आराम मिल रहा है, उसे नींद में ही मजा आ रहा है, उसमें खुशी महसूस हो रही है, तो वो बल्कि खुश हो रहा था। तो इस स्टोरी से ये नहीं है कि पत्थरों पे सोने से खुशी मिलती है। इट इज नॉट, वी शुड नॉट लर्न फ्रॉम दैट, वी शुड नॉट लर्न फ्रॉम दैट दैट पत्थरों से मिलने पे खुशी मिलती है और राजा दुखी होता है, नॉट लाइक दैट। इससे सीखा ये है, देखिए ये तो सभी जानते हैं, बल्कि ये बिलीव सिस्टम है, ये सही है या नहीं, ये बिलीव सिस्टम है जो मोस्टली आपका भी होगा कि द मनी गिव्स हैप्पीनेस एंड डेफिशिएंसी गिव पेन एंड सैडनेस। लेकिन इसका अपोजिट प्रूफ हो रहा है। अपोजिट क्या प्रूफ हो रहा है कि राजा who was having everything was not happy, whereas that labor, that मजदूर was not having anything and he was happy। तो इससे प्रूफ केवल ये हुआ कि हैप्पीनेस may not depend on the material and material may not give the happiness। मीन्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिसके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल है, पोस्ट है, रिलेशंस है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, वो हैप्पी हो भी सकता है। होने का तो सभी उम्मीद करते हैं, इसलिए उसको प्रूफ के द्वारा, लॉजिक के द्वारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हो भी सकता है, लेकिन ये हमने देखा है कि नहीं भी होता है। एट द सेम टाइम जिसके पास कुछ मटेरियल नहीं है, जो उम्मीद करते हैं ही मस्ट बी इन पेन, वो दुखी होगा, लेकिन वो दुखी नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो दुखी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मतलब क्या, इसका कंक्लूजन ये निकला, हैप्पीनेस इज नॉट रिलेटेड विद द मटेरियल एंड नाइदर मटेरियल गिव्स हैप्पीनेस और हैप्पीनेस कैन बी अचीव्ड विद द मटेरियल, दे आर नॉट। अब देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू। इससे देखिए एक चीज तो पता लग रही है कि सपोज आप कार में हैं, कार में बैठेंगे तो आपको हैप्पीनेस हो या ना हो, लेकिन आराम तो मिलेगा। ये नहीं कह सकते कि भाई आप मर्सिडीज में बैठेंगे, लग्जरी, इट इज ए वेरी लग्जरी कार, आप कार में बैठे लग्जरी है। अब कोई भी घटना आ जाए, कुछ भी दिमाग में कोई भी सैड न्यूज भी आ गई, लेकिन जो बॉडी, जो शरीर को लग्जरी मिल रहा है, वो तो कमी, उसमें तो कोई कमी नहीं होगी। खुशी गायब होना, इट इज ए मेंटल, और लग्जरी बने रहना, इट इज ए फिजिकल। फिजिकल मतलब शरीर को लग्जरी मिल रहा है, चाहे कोई भी कैसी भी इंफॉर्मेशन आ जाए, कोई भी घटना हो जाए, लेकिन लग्जरी तो रहेगी, नहीं रहेगी। मिस्टर युवराज सिंह, आप सहमत हैं इस बात से? यस सर। तो मतलब क्या हुआ कि जो कार है, बंगलो है, बंगला के अंदर आप सोफा पे बैठे हुए हैं, गार्डन में बैठे हुए हैं, तो सुगंध आ रही है, सुगंध तो आएगी, फूलों की सुगंध आ रही है, वो तो आ ही रही है। और झूले पे झूल रहे हैं, तो अब आपका मोशन, चाहे कोई भी सूचना मिल जाए आपको, आपका पता लगा कि आपका टर्मिनेशन हो गया, आप IAS ऑफिसर थे, आपको सस्पेंड कर दिया गया। अब आप अपने बंगलों में झूले पे झूल रहे हैं, तो झूलने में तो झूल ही रहे हैं, बॉडी उसमें तो रिलैक्स मिल रहा है, बॉडी में तो कोई कमी नहीं आएगी। मेंटली आपको ये लगेगा कि यू आर सैड, बट शरीर को तो आराम उतना ही मिल रहा है। ऑर्नामेंट्स आप पहने हुए हैं, ऑर्नामेंट की कीमत तो कम नहीं हो जाएगी। तो इट मीन्स these things, material gives comfort, so there is very much need to understand the difference between the two, what is the comfort and what is the happiness। material, देखिए comfort we get from the material and happiness is mental। material is physical, it gives comfort to the physical body हमारी physical है, तो उसको हमें material से लिंक है हमारी बॉडी, बिकॉज बोथ आर फिजिकल। हैप्पीनेस इज मेंटल,
So it is related with the mind. So it is not physical, it is metaphysical. So similarly, the whatever you possess, either it is material, post, relation, appreciation, ये and they are dependent upon other. देखिए मटेरियल तो मटेरियल है ही, उसके अलावा the things which are dependent upon other, या मटेरियल पे या किसी दूसरे फिजिकल पे, जैसे आप if you are dependent upon your father, if you are dependent upon son, if you are dependent upon your brother, तो क्या हो रहा है, आप रिलेशंस पे मीन्स वो भी तो फिजिकली आप अपने ब्रदर पे डिपेंड हो रहे हैं कि भाई वो आएगा, वो हमें हेल्प करेगा। जब उसने हेल्प नहीं की, आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, वो देख के हंस रहा है, आपको पिटता हुआ देख रहा है, तो आप खुश नहीं होंगे, बिकॉज आप यू आर रिलेटेड with your brother, you are related with your family member with some expectations, and their physical presence से आपको अपना ताकत फील कर रहे थे, वो आपको नहीं मिल पाई। So it means हमें ये बात अच्छी तरह समझना है, materials gives comfort and it is physical, और physical comfort किसे चाहिए, बॉडी को चाहिए। Similarly, mental happiness is mental and it is related with the mind. अब इसको और थोड़ा सा समझने के लिए इसको ऐसे समझिए, जैसे आप इफ यू हैव द 2 गार्डन इन योर हाउस, आपके घर में आपका जो सपोज करिए यू हैव बेंगलोर, उसमें आपका 2 गार्डन है, एक फ्रंट गार्डन है और एक बैक गार्डन है। ओके, तो फ्रंट गार्डन में आपके सपोज करिए फ्लावर्स लगे हुए हैं, और बैक गार्डन में आपके यहाँ सब्जियां लगी हुई हैं, और आप फ्रंट गार्डन में फ्लावर्स को क्या करते हैं, पानी देते हैं। फ्लावर्स को डेली आप साफ सफाई रखते हैं, पानी देते हैं, वहाँ के जो खरपतवार है, जो रॉ मटेरियल खराब चीज़ें हैं घास में से, वो निकालते हैं, तो इट विल फ्लरिश, आपके फ्लावर्स खिल रहे हैं। और पीछे जो आपका गार्डन है, उसमें सब्जियां लगी हुई हैं, उसमें आप पानी नहीं देते और उसका आप ध्यान भी नहीं रखते, तो क्या फ्लावर्स में पानी देके, फ्रंट गार्डन पे पानी देने पे, क्या बैक वाले गार्डन में सब्जियां ऑटोमेटिक उग जाएंगी या नहीं उगेंगी? मिस्टर कुणाल, यस सर, यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? यस सर। आप आगे फ्रंट गार्डन में जिसमें फ्लावर्स लगे हैं उसमें तो पानी देते हैं, पीछे वाला गार्डन जिसमें सब्जी लगे हैं उसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो आगे वाले गार्डन में पानी देने से क्या सब्जियां ऑटोमेटिक उगने लगेंगी या नहीं? नहीं सर, नहीं उगेंगी। इसका मतलब आपको उसमें भी पानी देना पड़ेगा, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इससे पहले हमने ये देखा कि मटेरियल एंड हैप्पीनेस आर 2 डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। मटेरियल मे नॉट गिव हैप्पीनेस, दोनों एग्जाम्पल्स आपने देख लिए। सिमिलरली हैप्पीनेस मटेरियल से मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, और किसी सो वाइस वर्सा आपने देखा, मीन्स कंफर्ट, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू एंड दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। मटेरियल इज रिलेटेड विद द कंफर्ट एंड हैप्पीनेस इज रिलेटेड विद द माइंड। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। सिमिलरली किस तरह डिपेंडेंट नहीं है, जैसे आपके बेंगलोर के अंदर 2 गार्डन थे, एक फ्लावर वाला था आगे का और एक सब्जी वाला था, वेजिटेबल्स का था, वो आपस में डिपेंडेंट नहीं थे। हम गलती क्या करते हैं, गलती क्या हो रही है, हम ये सोचते हैं फ्लावर्स में पानी देंगे तो सब्जियां अपने आप पैदा हो जाएंगी, या हम मटेरियल अर्न कर लेंगे। गलती होती है, हम सोचते हैं जब हमारे पास कार आ जाएगी तब हम हैप्पी हो जाएंगे, जब हमारे पास बंगला आ जाएगा तब हम हैप्पी हो जाएंगे, जब हमारे पास गोल्ड ज़्यादा आ जाएगा तब हम हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन दे आर 2 डिफरेंट। हैप्पीनेस के लिए अलग काम करना पड़ेगा और कंफर्ट के लिए ये क्लियरिटी होनी चाहिए। ये चीज़ें जब आ जाएंगी तो हमें कंफर्ट मिलेगा या हमारी बॉडी को आराम मिलेगा। तो या जब हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे तो हैप्पीनेस आ जाएगी। रिलेशन अच्छे हो जाएंगे मतलब तो हैप्पीनेस आई नहीं, एक्सपेक्टेशंस अगर बढ़ जाएंगी आपकी, रिलेशंस के साथ अगर एक्सपेक्टेशन बढ़ गई तो हैप्पीनेस नहीं आएगा। बट इट विल एक्सपेक्टेशंस क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस आर द
इफ यू डिफाइन द एक्सपेक्टेशंस, इट इज द प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ अदर्स। आप ये सोच रहे हो कि आपका ब्रदर आपकी मदद करेगा बुरे समय में, या आपका फ्रेंड आपके बुरे समय में आपकी मदद करेगा, लेकिन ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है। वो खुद ही किसी बात को लेकर परेशान है, या उसका इंटेंशन नहीं है आपकी मदद करने का, तो आप दुखी हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेक्टेशंस हमेशा, इफ यू डोंट एक्सपेक्ट, आप अपनी क्षमता पे कोई काम कर रहे हैं, यू गिव देम, आप इफ यू हेल्प देम, आप उसे मदद करें या ना करें, ये आपकी मर्जी। आप मदद करें तो आपकी मर्जी, आप पूरा कर रहे हैं, यू विल, अगर आपने सोचा हुआ मैं उसकी मदद करूंगा तो आप उसकी मदद करेंगे, मदद करके आपको अच्छा फील होगा। बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आप, यू आर गिविंग द की इन द हैंड ऑफ अदर्स, तो आपको दुख भी हो सकता है। सो एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज गिव बिकॉज यू आर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर बिहेवियर। तो दूसरा उस समय ऐसी परिस्थितियों में ऐसा बिहेव करेगा, दिस इज द एक्सपेक्टेशंस। लेकिन हकीकत ये, सपोज आपने ये डिसाइड कर लिया आज सुबह 9:15 पे मैं बहुत खुश रहूंगा, लेकिन आपके फादर ने आकर आपको डांट दिया, या आप बाहर वाला आदमी आपको कोई गाली गलौज कर गया या धक्का मुक्की कर गया, तो आपका बिहेवियर उस समय जो आपने सोचा था मैं 9 बजे बहुत खुश होऊंगा, वो पता लगा आपका मूड खराब हो गया, आप खुश होने की बजाय दुखी हो रहे हैं। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ योर सेल्फ। आप 15 मिनट के बाद, आप 20 मिनट के बाद क्या करने जा रहे हो, वो भी आप गारंटी से अपनी गारंटी नहीं ले सकते, और आप दूसरे के फ्यूचर बिहेवियर पे अपने आप को डिपेंड करते जाएंगे, देन इट इज द वीकनेस। आप खुश नहीं रह पाएंगे। सो दिस इज आल्सो नॉट द हैप्पीनेस। ये अब देखिए, ये उसी तरह है, दिस इज लाइक तो मिस्टर कुणाल, यस सर। हाँ, आपको मेरी बात में कुछ लॉजिक लग रहा है? यस सर, बिल्कुल सर। देखिए, ये अगर हम एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एज इंजीनियर्स देखें तो देन आपने देखिए वोल्टेज स्टेबिलिटी पढ़ा है और एंगल स्टेबिलिटी पढ़ा है। वोल्टेज स्टेबिलिटी और एंगल स्टेबिलिटी क्या कहता? एंगल स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द एक्टिव पावर, इट इज रिलेटेड विद द एक्टिव पावर। Voltage stability is mainly dependent upon the reactive power. If the reactive power does not match the demand, reactive power generation does not match the demand, then it may cause the voltage instability. If the active power does not match the demanded active power, then angle stability problem will take place. And we told they are, अगर आपने थ्योरी में ध्यान होगा, वी स्टडी बोथ सेपरेटली, दोनों को हम सेपरेटली स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल के लोग। हाँ जी, तनु दरबार, तनु। यस सर। हाँ, सेपरेटली स्टडी करते हैं कि नहीं, एंगल स्टेबिलिटी और वोल्टेज स्टेबिलिटी? यस सर। हाँ, और ये कहते हैं भाई ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इनको हम सेपरेटली स्टडी कर सकते हैं। इसको जो एंगल स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं उसको अगर हम एजीसी में बात करें तो प्राइमरी ऑटोमेटिक लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के थ्रू स्टडी करते हैं, उसे एक्साइटेशन लूप के थ्रू स्टडी करते हैं। एंड और फिर देखा था हमने ऑलमोस्ट दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। सिमिलरली जैसे हमने ये कहा कि आगे का गार्डन और पीछे का गार्डन ऑलमोस्ट दे आर इंडिपेंडेंट, बट एंगल स्टेबिलिटी वोल्टेज स्टेबिलिटी में भी हमने कहा था ऑलमोस्ट दे आर इंडिपेंडेंट बट देयर इज सम रिलेशन, वेरी लेस, 1-2%। हमने कहा था 97-98% दे आर इंडिपेंडेंट, 1-2% वो डिपेंडेंट भी हैं। अगर हमने एक का ध्यान नहीं रखा, वोल्टेज स्टेबिलिटी का ध्यान नहीं रखा, तो बहुत बार हो सकता है लो वोल्टेज प्रोफाइल पे हमारा सिस्टम फिक्स हो जाता है, एंड अदरवाइज इन सम टाइम इट में consequence events may take place and it lead to the angle stability. वोल्टेज स्टेबिलिटी का ध्यान नहीं रखा तो ये वोल्टेज एंगल स्टेबिलिटी में चला जाएगा, एंगल स्टेबिलिटी का ध्यान नहीं रखा तो वोल्टेज स्टेबिलिटी में चला जाएगा।
ऑलमोस्ट दे आर इंडिपेंडेंट, बट इवन देन देयर इज सम रिलेशन। आपने किसी लेवल तक अगर उसका ध्यान नहीं रखा तो वो एक दूसरे को अफेक्ट कर जाते हैं। ऐसे ही अगर हम देखिए वेंगलो की बात करें, अगर आपने आगे पानी दिया, पीछे बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, लेकिन अगर आपने देखिए जब आप आगे पानी दे रहे हैं फ्लावर्स में तो आपका मूड अच्छा होगा, मूड अच्छा होगा, अच्छा सुगंध आ रही है, मूड अच्छा होगा तो करेगा अच्छा चलो आज पीछे भी पानी देते हैं, थोड़ा उसमें ध्यान आ जाएगा आपका। ऐसे ही जब आप मटेरियल इकट्ठा करते हैं, कंफर्ट मिलेगा तो थोड़ा सा आपका मूड स्विंग भी होगा, और वाइस वर्सा अगर आपका मूड अच्छा है, अगर आप हैप्पी हैं, इफ यू आर हैप्पी एनफ, तो आपका काम में मन लगेगा। सपोज करिए आप खुश होकर ऑफिस जाते हैं और एक दुखी होकर ऑफिस जाते हैं, किसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छा होगा, प्रमोशन होने के चांस किसमें ज्यादा हैं? तनु, मिस्टर तनु, मिस तनु। Yes, sir. हाँ, एक आप खुश होकर ऑफिस में काम करते हैं तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, या दुखी होकर काम करते हैं? सर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। नहीं, सिचुएशन तो सेम है, सेम सिचुएशंस हैं। आप उन्हीं सिचुएशन में तो खुश होकर जाएं, और Yes, sir. उसी सिचुएशन, और एक उन्हीं सिचुएशन में आप घर की परेशानियां दुखी होकर जाएं। सर खुश होके। खुश होकर जाएंगे तो आप परफॉर्मेंस अच्छा देंगे, खुशी Yes, खुशी sir. पढ़ेंगे। एक तो आप अच्छा, आप खुशी खुशी पढ़ रहे हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है, या आपको डंडे से बैठा दिया जाए 2 घंटे पढ़ो, पेरेंट्स ने कह दिया सुबह उठो 5 बजे और 2 घंटे तक पढ़ना है, उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, या अपनी मर्जी से सुबह उठ के पढ़ेंगे उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देंगे? सर जो अपनी मर्जी से करेंगे अच्छे से खुश होके। इसका मतलब क्या हुआ कि हैप्पीनेस का इफेक्ट देखिए आपकी परफॉर्मेंस पर आया, परफॉर्मेंस का इफेक्ट मटेरियल पर आ गया। और अभी तक हमने ये कहा था दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अब मैं क्या कह रहा हूं, दे आर समहाउ डिपेंडेंट, दे आर समहाउ डिपेंडेंट, दैट हैप्पीनेस से आपको मटेरियल, और जब सब चीजें मान लीजिए कि आपके पास पढ़ने के लिए बिजली भी नहीं है, गर्मी हो रही है, घर भी नहीं है, और आपसे कह दिया जाए पढ़ो, तो आप ठीक से पढ़ पाएंगे, या आपको एसी लगा हुआ तब ठीक से पढ़ पाएंगे? बताइए। सर कंफर्ट मतलब, हाँ, जब आपको अच्छा एटमॉस्फेयर कंफर्ट भी मिलेगा, देन इट विल ऐड आपके परफॉर्मेंस में ऐड करेगा। हालांकि ये जरूरी नहीं है, देखिए जिसके पास सब कुछ होता है, जिसके पास सब कुछ होता है, ये आपने देखा होगा, जिसके पास सब कुछ होता है, सारे कंफर्ट होते हैं, उसके बच्चे बिगड़ जाते हैं, और जिसके पास डेफिशिएंसीज होती है उसके बच्चे IAS बनते हैं। ये मोस्टली देखा गया है। लेकिन फिर भी देयर इज सम रिलेशन दैट हैप्पीनेस से, सम रिलेशन मतलब मूड स्विंग है, हैप्पीनेस है तो आप थोड़ा मटेरियल में भी आपका हेल्प होता है, मटेरियल अच्छा है थोड़ा हैप्पीनेस में होता है ज्यादा। तो मोस्टली समझने की, मोस्टली ये जो गलती होती है कि आप 100% इस बात पे डिपेंड हो जाते हैं कि जब मेरे पास कार आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, या जब मेरे 90% मार्क्स आ जाएंगे, या मैं उससे आगे निकल जाऊंगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, या जब वो मुझसे अच्छी तरह बिहेव करेगा तब मैं खुश। ये मान के चलिए कंप्लीटली या मोस्टली दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इंडिपेंडेंट मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें क्या करना चाहते हैं, जैसे, और जब ये पता, देखिए हमारा अगर ये बिलीफ सिस्टम है मटेरियल गिव्स हैप्पीनेस, सपोज करिए इट इज ए बिलीफ सिस्टम मटेरियल गिव्स हैप्पीनेस, तो हम मटेरियल के लिए काम करते रहते हैं और हमें कार भी मिल जाती है, बंगलो भी मिल जाता है, रिलेशन भी मिल जाते हैं, अच्छा मैरिज भी हो जाती है, सब मिल जाता है, और लास्ट में पता लगता है कि भाई हम खुश तो हुए नहीं, खुश हुए नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम ये था मटेरियल से हैप्पीनेस मिल जाएगी, हमने हैप्पीनेस के लिए कभी काम नहीं किया, वी नेवर वर्क फॉर द हैप्पीनेस। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लास्ट में जब आपको सब कुछ मिल गया तब आपको पता लगता है कि भाई हमें सब कुछ तो मिल गया लेकिन खुशी नहीं मिली, क्योंकि आपने उसको ये सोचा था इसी से केवल खुशी मिल जाएगी, ये गलती की थी। जबकि एक्चुअली क्या है, यू हैव टू वर्क फॉर बोथ, दोनों के लिए अलग अलग काम करना पड़ेगा, दोनों के लिए अलग अलग काम करना पड़ेगा। अगर आपको कंफर्ट के लिए, आप सोचिए कंफर्ट के लिए हमें मटेरियल के लिए अर्न करना है, इन्वेस्ट करना है,
और हैप्पीनेस के लिए मानसिक स्थिति को सही रखना है, उस पर भी काम करना, मन की स्थिति अच्छी रहे और हैप्पीनेस हमारी बनी रहे, इसके लिए भी हमें काम, दोनों पे सेपरेटली काम करेंगे तो दोनों चीजें मिलेंगी, और एक पे काम करेंगे तो एक ही चीज मिलेगी। साइड में थोड़ा सा है, जैसे हमने कहा दे आर रिलेटेड विद 1 और 2%, 1-2% एक दूसरे का इफेक्ट भले ही होगा, लेकिन मोस्टली दे आर इंडिपेंडेंट, वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो ये गलती, नॉर्मली गलती क्या करते हैं, उसी तरह की गलती हो गई जैसे हम कहते हैं कि भाई जैसे मान लो नमकीन खाने का मन है, मतलब आपको पसंद तो है नमकीन, लेकिन आप खा रहे हैं मीठा, रसगुल्ला खा रहे हैं, फिर कहते हैं ओ नमकीन नहीं लगा, मजा नहीं आया, या आप चाट खा रहे हैं और मतलब और उम्मीद ये कर रहे हैं कि भाई हमें मीठा लगना चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेशन जो है आपका सही चीजों को जो हम कर रहे हैं, मीन्स हमारे कर्मा जो हैं, अवर कर्मा शुड बी रिलेटेड विद व्हाट वी वांट, जो हमें चाहिए वही हमारे कर्म होने चाहिए। मतलब आप सोच रहे हैं हम आईएएस बनने कंपटीशन की तैयारी करें, लेकिन आपका कर्म क्या है, आप आवारागर्दी रेलवे स्टेशन पे घूम रहे हैं, तो जो आपको चाहिए उसके लिए आपको इनपुट डालना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, टाइम का, मनी का, माइंड का, देन यू विल गेट। और आपको खुश रह के ये सब चीजें करेंगे तो आपको खुशी को भी बरकरार रखना है, और जो आपका अचीवमेंट है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसको भी बरकरार रखना है। तो आई थिंक देयर इज ए, कम से कम ये चीज क्लियर हो गई कि बोथ आर, वी हैव टू वर्क इंडिपेंडेंटली फॉर बोथ। तो अब देखिए, अब नाउ वी आर इन ए पोजिशन टू डिफाइन व्हाट इज द हैप्पीनेस, है क्या। तो हैप्पीनेस इफ वी डिफाइन, इट इज द इनर स्टेबिलिटी। अब क्योंकि अब आपको देखो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको कार चाहिए, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको पैसा कमाना है, कंफर्ट, कार से कंफर्ट मिलेगा, बेंगलोर से कंफर्ट मिलेगा, अच्छे कपड़ों से आपको, दोनों चीजें आप, यू विल फील सेटिस्फाइड। तो इनके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए पैसा कमाना है, पैसा कमाना मतलब आपको उसके लिए काम करना है। लेकिन हैप्पी रहने के लिए क्या करना है, हैप्पी रहने के लिए क्या करना है, तो उसको समझने के लिए, हैप्पी रहने को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज इट, है क्या ये। तो इट इज द इनर स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस मतलब इट इज इनर, आंतरिक स्थिरता है। जो स्थिरता का मतलब क्या, अप एंड डाउन, किसी ने कोई कुछ कह दिया, सपोज कोई आया और उल्टा पुल्टा कह गया तो आप दुखी हो गए, तो हमें अब दूसरे के स्टेबिलिटी, अपनी स्टेबिलिटी रखनी, मतलब लोड डिस्टरबेंस है, हम ज्यादा इफेक्ट, स्टेबिलिटी आपको बताइए क्या है, डिस्टरबेंस है, यू आर एबिलिटी टू रिटेन नॉर्मल फॉलोइंग द डिस्टरबेंस होने पे भी अपने आप को नॉर्मल रख पाते हैं, वही स्टेबिलिटी है। मतलब कोई भी कुछ आके कह गया और आपको खड़का गया, आपको धक्का मुक्की कर गया, तो आप स्टेबल, इनर स्टेबल मतलब माइंड से भी स्टेबल रहते हैं, इरिटेट नहीं होते, गुस्सा नहीं करते, तो आप इनर स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाते हैं। इनर स्टेबिलिटी मीन्स कोई भी कुछ कह गया और आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कि हम आई एम हैप्पी, खुश, दैट कॉजेज द पीपल so we can say it is the inner stability and satisfaction that causes the peace flowing from you in all circumstances। मतलब सभी circumstances में आपकी जो शांति है वो फ्लो होती रहे, स्टेबिलिटी मेंटेन रख पाए, आप सेटिस्फाइड रहें। ये भारी चीजों पे, डिस्टर्बेंसेस पे, डिस्टर्बेंस मटेरियल का डिस्टर्बेंस हो, किसी ह्यूमन बीइंग का डिस्टर्बेंस हो, किसी सिचुएशन का डिस्टर्बेंस हो, उससे आप ज्यादा इफेक्ट ना हो, उसे कहते हैं हैप्पीनेस, उसे मेंटेन कर पाते हैं, देन इट इज ए हैप्पीनेस। आप हैप्पी रह पाएंगे बिकॉज हैप्पीनेस इज नथिंग आउटसाइड। देखिए हैप्पीनेस इज नॉट नथिंग आउटसाइड, इट इज फ्रॉम इनसाइड। यू आर ऑलरेडी, देखिए एक बात और समझने की जरूरत है, यू आर एवरीबडी इज ऑलरेडी हैप्पी। हमें एक गलती और क्या करते हैं, हमें लगता है खुशी हमें बाहर से मिलेगी, खुशी बाहर से नहीं मिलती है, खुशी अंदर होती है। वी हैव द इनर हैप्पीनेस, लेकिन हमें उसको लीक नहीं होना है। मतलब हैप्पीनेस हम खो देते हैं ये सोच के, हम वी आर सर्चिंग आउटसाइड,
हम बाहर ढूंढने हैं, बाहर मिलती नहीं है, तो जो है अंदर की वो भी हम लूज करते जाते हैं, लीक होती जाती है। तो अंदर की खुशी को हमें मेंटेन करके रखना है। स्टेबिलिटी, सेटिस्फैक्शन और पीस को मेंटेन करके रखते हैं इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, देन इट इज ऑलवेज, हैप्पीनेस हमेशा बनी रहती है। हैप्पीनेस इज द इनर स्टेबिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन, इट मेक्स अस डूइंग ऑल वर्क विद गुड फीलिंग। तो हम जितने भी काम कर रहे हैं वो अच्छी भावनाओं से हमें करने के लिए, हैप्पीनेस अगर होगी तो हम करा पाएंगे। हैप्पीनेस का उल्टा सैडनेस। इसको फिर देखिए, फिर थोड़ा सा और समझना चाहते हैं। देन मटेरियल्स, मनी एंड बॉडी आर हार्डवेयर, ये तो हार्डवेयर है। माइंड, इंटेलेक्ट एंड हैप्पीनेस आर सॉफ्टवेयर। दोनों चीजों में, साहिल पूनिया, आर यू कन्विंस्ड विद दिस? आर यू लिसनिंग मी साहिल? Yes, sir. हाँ, जैसे मैंने कहा मटेरियल, मनी एंड बॉडी ये हार्डवेयर है। माइंड, देखिए माइंड को आप छू सकते हैं, माइंड छू सकते हैं, इट इज No, सॉफ्टवेयर। इंटेलेक्ट इसको टच कर सकते हैं, एंड हैप्पीनेस यू कांट टच इट। यू कैन टच द मनी, यू कैन टच द बॉडी, यू कैन टच द मटेरियल। तो ये हमारे हार्डवेयर हैं, माइंड, इंटेलेक्ट एंड हैप्पीनेस आर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर केयर्स हार्डवेयर, हार्डवेयर से हार्डवेयर का आप काम चलाते हैं। सॉफ्टवेयर केयर फॉर सॉफ्टवेयर। ट्राई टू करेक्ट सॉफ्टवेयर बाई द यूज ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर से आप सॉफ्टवेयर, जैसे आपकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम किए हैं, हार्डवेयर में मॉडिफाई करके प्रोग्राम सही कर लेंगे। हेलो, Yes, sir. हाँ जी, टीचर आर यू लिसनिंग मी? यस सर। हाँ, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर सही कर सकते हैं, नो सर। सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर सही कर सकते हैं। कुछ हद तक तो कर सकते हैं। हाँ, अगर यस, हाँ, सॉफ्टवेयर से, जैसे सपोज करिए कि आपको प्रिंट आउट लेना है, आपने सॉफ्टवेयर से आपको प्रिंट आउट लेना है, तो प्रिंट कमांड देते हैं तो प्रिंट आउट होता है, लेकिन प्रिंटर नहीं है तो क्या करते हैं, एटलीस्ट वी कैन डू प्रिंट पीडीएफ, कर देते हैं कि नहीं? यस सर। प्रिंटर नहीं है तो प्रिंट पीडीएफ करके रख लेंगे और बाद में जब हमें जरूरत पड़ेगी तो प्रिंट आउट ले लेंगे। मतलब कुछ हद तक सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर का काम तो करा सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर का काम कभी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैप्पीनेस से सॉफ्टवेयर क्या है, हैप्पीनेस से आपको मटेरियल्स पोजेशंस का कुछ बेनिफिट जरूर मिल सकता है, लेकिन मटेरियल से हैप्पीनेस का नहीं मिलेगा। मींस इसकी इंपॉर्टेंस, जैसे आपका वोल्टेज स्टेबिलिटी और एंगल स्टेबिलिटी में भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता होगा, हालांकि दोनों की जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करने लग जाए, और ये देखा था एक दूसरे पे डिपेंड भी है बाई लेस अमाउंट, 1-2% दे आर इंडिपेंडेंट, बट फिर भी अगर आप कंपेयर करें तो आप कहेंगे एंगल स्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी 1% ज्यादा है, क्योंकि इट गिव्स द एक्टिव पावर। हमें एक्चुअली तो एक्टिव पावर चाहिए, रिएक्टिव पावर की जरूरत नहीं है। रिएक्टिव पावर हम कंज्यूम नहीं कर, वो उसकी अदरवाइज इनडायरेक्टली जरूरत है, बट वी कंज्यूम द एक्टिव पावर। उसका यूजफुल वर्क में एक्टिव पावर काम आती है, रिएक्टिव पावर यूजफुल वर्क में काम नहीं आती। सो वी कैन से कि द एंगल स्टेबिलिटी स्लाइटली मींस 1-2% इज मोर हैविंग मोर इंपॉर्टेंस देन दैट। तो ऐसे ही अगर हम कहें, फिर भी हालांकि अभी तक यही देखा है, दे आर इंडिपेंडेंट, वेरी लेस रिलेटेड टू ईच अदर, फिर भी अगर कंपेयर करें तो आपको पता लगेगा कि हैप्पीनेस इज हैविंग मोर वेटेज, 1% भले ही
हालांकि दोनों की वेटेज सेपरेट है और दोनों की जरूरत है, हमें दुनिया में समाज में दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। जब एक ही चॉइस हो, व्हेन देयर इज ए वन चॉइस, देन हैप्पीनेस हैज ओवर वेटेज। सो ट्राई टू करेक्ट सॉफ्टवेयर बाय यूज ऑफ हार्डवेयर इज जस्ट लाइक ईटिंग सॉल्ट एंड डिजायरिंग टेस्ट ऑफ स्वीटनेस। मतलब उसी तरह है कि आप खा तो रहे हैं नमक और सोच रहे हैं हमें स्वीटनेस क्यों नहीं आ रही, डिजायरिंग द टेस्ट ऑफ स्वीटनेस, और उम्मीद कर रहे हैं कि हमें मीठा लगना चाहिए। तो 10 पुट द एफर्ट्स एज यू इंटेंड द रिजल्ट्स। तो हम जो चाहते हैं उसके लिए काम करना चाहिए। अगर आप स्वीटनेस खाना चाहते, स्वीटनेस का टेस्ट चाहते हैं तो स्वीट खाइए, नमक का टेस्ट करना चाहते हैं तो नमक खाइए। दोनों को चाहते हैं कभी नमक कभी स्वीट, तो दोनों पे काम करिए, कभी स्वीट खाइए कभी नमक खाइए। लेकिन ये गलती मत करिए जब आप अर्निंग सॉल्ट के लिए करते जाएं और टेस्ट करते जाएं स्वीट के लिए, और काम स्वीटनेस के लिए करते जाएं, मिठाई के लिए करते जाएं और एक्सपेक्ट करते जाएं सॉल्ट। वो कभी मत करिए। मतलब क्या है आपको, लेकिन इनफैक्ट मेरा मानना ये है दोनों चीजों के लिए the human being should work for both। अब आप बताइए, आपको दोनों चीजें चाहिए, एक चाहिए, whether you want one or two। पवन कुमार, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। हाँ, तो आप बताइए आपको कंफर्ट चाहिए या हैप्पीनेस चाहिए या दोनों चाहिए? मिस्टर पवन, दोनों सर। दोनों चाहिए। तो जब दोनों चाहिए तो ये गलती ना करें। हम करते क्या, यही गलती करते हैं कि दोनों चाहिए तो दोनों के लिए काम करना पड़ेगा। यस सर। दोनों चाहिए तो दोनों के लिए काम करना चाहिए। हम एक के लिए काम करते रहते हैं और एक को इग्नोर करते रहते हैं और बाद में फिर पछताते हैं भाई ये तो हमारे पास है ही नहीं। क्वेश्चन इज कि अगर हमें दोनों चाहिए तो वी मस्ट हैव वेरी मच क्लियर कि हमें दोनों के लिए ही एफर्ट्स करने हैं। वी शुड एफर्ट फॉर बोथ, हैप्पीनेस के लिए भी और कंफर्ट के लिए भी, दोनों के लिए एफर्ट करना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया कि दोनों का डिफरेंस को अच्छी तरह समझें और दोनों के लिए हमें काम करना है। दिस इज क्लियर नाउ। अब देखिए मटेरियल के लिए क्या करें, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको अच्छी तरह पता है। मटेरियल कम्स विद फ्रॉम मनी, और मनी कैसे आता है आपको पता है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन द हैप्पीनेस, कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस। हमारी जो खुशी है वो कैसे लूज हो जाती है और क्या चैलेंजेस हैं दैट कॉजेज आवर हैप्पीनेस, दैट लूजेज आवर हैप्पीनेस। वो कहते हैं covetousness, that is the greed। There is enough in the world of everyone's need, but not even enough for anyone's greed। मतलब देखिए Are you able to see the screen? Yes, sir. यस सर। ये what are the challenges in the happiness। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक तो ये हमारा लोभ लालच है जो दैट, देखिए इसमें क्या है, एन एक्सेस डिजायर टू एक्वायर possesses more than what you needs। जो चीज आपको चाहिए आप अपनी कैपेसिटी, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से जो चीज आपको मिलना चाहिए उससे ज्यादा का जब आप डिजायर करते हैं वही ग्रीड पैदा कर देती है। उस ग्रीड से क्या होता है, उस ग्रीड से आप उसके पीछे भागते हैं। दैट में बी वेल्थ, दैट में बी मटेरियल। तो लेकिन उसका कभी अंत नहीं है, वो डिजायर आपकी बढ़ती रहती है। तो आप एक मृग तृष्णा की तरह, इल्यूजन की तरह आप क्या है, परेशान दुखी होते रहते हैं।
तो तभी ये कहा देयर इज एनफ इन द वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर एनीवन्स ग्रीड। एक व्यक्ति की भी पूरी दुनिया डिजायर ग्रीड को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप सोचेंगे कि मैं क्लास में टॉप कर जाऊं, फिर आप सोचेंगे मैं यूनिवर्सिटी में टॉप कर जाऊं, जब वो ग्रेड पूरी हो जाएगी तब आप सोचेंगे मैं पूरे प्रदेश में टॉप कर जाऊं, जब वो पूरा हो जाएगा आप पता लगा पूरे दुनिया में आप टॉप बन जाएंगे, पूरी दुनिया में के भी टॉपर बन जाएंगे, फिर भी ये ग्रेड बढ़ती रहती है। फिर आप सोचेंगे कि मैंने एजुकेशन में तो कर लिया, अब मैं फाइनेंस में तो पीछे रह गया, फाइनेंस में मैं शहर में नंबर 1 आ जाऊँ, जब शहर में नंबर 1 आ जाएंगे तो आप कहेंगे प्रदेश में नंबर 1 आ जाऊँ, तो प्रदेश में आ जाओगे, पूरी दुनिया में भी आ गए, फिर आप सोचेंगे अरे मैं तो स्पोर्ट्स में रह गया। मीन्स देयर इज नो वन, कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसकी सभी ग्रेड पूरी हो जाए। मीन्स जो हर तरह से जिसे हर चीज अचीव हो जाए, हर फील्ड की हर चीज में वो टॉप पे हो, इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए जो सबसे पैसे वाला व्यक्ति भी है, नंबर 1 भी है वर्ल्ड में, उसे ये उम्मीद करना वो हैप्पी होगा, इट इज नॉट ट्रू। उसकी अपने थॉट पैटर्न पे डिपेंड करेगा। तो नॉर्मली देखिए होता क्या है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज मीन्स आपके पास पोस्ट है, पावर है, मनी है, स्ट्रेंथ है, फैमिली है, वो एक्सटर्नल है। इनर स्ट्रेंथ IQ लेवल है, ये सब आपके रिसोर्सेज हैं। इस रिसोर्सेज को आप यूज करके यू वांट टू अचीव समथिंग। ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये आपके इनपुट्स हैं, ये रिसोर्सेज हैं, इस रिसोर्सेज से यू वांट टू अचीव समथिंग एंड इट डिपेंड्स यू डू द एफर्ट्स। तो जो भी आपकी एफिशिएंसी होगी, जितनी भी आपकी एफिशिएंसी होगी, आप एफर्ट्स, सपोज आपने 100% एफर्ट्स लगाए और फिर आपकी एफिशिएंसी 80% है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अचीवमेंट होगा। अभी आपको डिसाइड करना है ये अचीवमेंट आपको हैप्पीनेस चाहिए या मटेरियल चाहिए। अगर आपने हैप्पीनेस चाहिए तो हैप्पीनेस के लिए आपको लगाना पड़ेगा, मटेरियल चाहिए तो मटेरियल की, दोनों चाहिए तो आपको यहाँ सेट करना पड़ेगा दोनों अचीवमेंट्स में। हैप्पीनेस भी मीन्स हमें अपनी हैप्पीनेस को बरकरार रखते हुए और ये मटेरियल्स को अचीव करना है, ऐसा टारगेट भी आप बना सकते हैं। बहुत बार आपने देखिए आपका सब कुछ है, यू हैव द इनर स्ट्रेंथ, यू हैव द फैमिली स्ट्रेंथ, यू हैव द मटेरियल पावर, एवरीथिंग, सोर्स है, सब कुछ है आपके पास, और आपने मेहनत भी 100% की, आपकी एफिशिएंसी भी 100% है, फिर भी आप जो आपने डिसाइड किया था वो आपको नहीं मिला, बिकॉज दिस नॉट आउटपुट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन दिस and not only dependent upon the efficiency and efforts, it also depends upon our past karmas. बहुत बार होता है एक ही बाप के 2 बच्चे हैं, सेम इनपुट्स है, दोनों इंटेलिजेंट हैं, फिर भी एक सक्सेस होता है एक नहीं होता, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा, पास्ट कर्मा आल्सो अफेक्ट्स द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। लेकिन हमें इससे परेशान नहीं होना है, हमें इसको ऑप्टिमाइज करके चलना। वी हैव टू ऑप्टिमाइज के हमें इसमें बेस्ट पार्ट भी विदाउट फीलिंग लो, हमें अपने एफर्ट्स को ऑप्टिमाइज करना सो दैट वी कैन ट्राई टू अचीव व्हाट वी वांट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दैट हैप्पीनेस, हु नीड्स हैप्पीनेस, हु नीड्स मटेरियल। युवराज सिंह, युवराज, यस सर। हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि किसे हैप्पीनेस चाहिए और किसे मटेरियल चाहिए। सर हैप्पीनेस हमारी सोल को चाहिए और मटेरियल बॉडी को। हाँ, देखिए जैसे यहाँ देखा, आप यहाँ देख पा रहे हैं, हु नीड्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस किसे चाहिए,
इनर स्ट्रेंथ है तो वी द सोल नीड्स, आई द ड्राइवर नीड्स द हैप्पीनेस। मटेरियल किसे चाहिए? कंफर्ट किसे चाहिए? द बॉडी। तो एंड आई, हम क्या है? आई द ड्राइवर एक्ट्स थ्रू दिस बॉडी। तो ये वी आर द कंबाइंड द टू। तो ऐसे ही हैप्पीनेस और मटेरियल दे आर कंबाइंड टू द टू। अब देखिए, ये देखिए ये फिगर आप देख पा रहे हैं? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? देख रहे हैं प्रदीप कुमार? यस सर, बिल्कुल देख रहे हैं सर। हाँ, ये देखिए क्या देख रहे हैं? थिंग्स आई लाइक टू डू, जो मुझे करना पसंद है और जो मैं करता हूँ। थिंग्स आई एम गुड, मतलब मैं सपोज करिए मुझे मैकेनिकल पसंद है लेकिन मैंने ली इलेक्ट्रिकल है। आई लाइक टू डू, या हमने पसंद कंप्यूटर था लेकिन ले लिया सिविल इंजीनियर। पेरेंट्स ने कहा उसमें करप्शन है और आप सिविल ले लो। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? ये जो चीजें कॉमन होंगी वो तो हमें बेनिफिट करेंगी, जो कॉमन नहीं होंगी वो उससे बेनिफिट नहीं होने वाला। ऐसे ही द थिंग्स दैट मेक मनी। और अब देखिए, हमने इलेक्ट्रिकल पसंद था, कंप्यूटर ले लिया, या कंप्यूटर पसंद था, मैकेनिकल ले लिया, लेकिन और ये पता है पैसा मिलता है मैनेजमेंट में। थिंग्स दैट मेक मनी। अब मैं क्या हूँ? आई थिंग्स आई डू, लेकिन मैं करता हूँ ये। पसंद और कुछ है, और कुछ ले रहा हूँ, पैसा और किसी से मिलता है, लेकिन प्रेजेंटली अब मैं जो कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ। तो इट इज नॉट मैचिंग, जब हमारा किसी से मैचिंग नहीं कर रहा है। थिंग्स आई डू, अगर ये ऐसा हो, आई इज हियर, आई के अंदर ये सारा होना चाहिए। आई के अंदर अगर सारा होगा देन वी विल गेट, तभी हम ज्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो इसमें भी ट्यूनिंग करने की जरूरत है। जो हमारा स्किल है, मीन्स हमें अपने इंटरेस्ट देखना है, ये भी देखना है कंफर्ट के लिए हमें पैसा कमाना है तो कहाँ से कितना किसमें अवेलेबल है, क्या काम करना है, क्या हमारी स्किल है, तो उसको अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिसाइड। एज आई टोल्ड द चैलेंजेस, हैप्पीनेस में चैलेंजेस क्या थे? एक तो यही था कि हम गलत समझ पा रहे थे, दोनों को पहचान नहीं पा रहे थे। हम मृग कृष्णा की तरह उसके पीछे भाग रहे, मटेरियल के पीछे भाग रहे थे। उसके पीछे नहीं भागना है, हमें खुश रहते हुए। हैप्पीनेस में क्या है? खुश रहते हुए, बिकॉज हैप्पीनेस इज द इनर स्ट्रेंथ। हमें अपने आप को खुश रखते हुए, बीइंग हैप्पी, अपने को बीइंग हैप्पी, ये मानते हुए आई एम द हैप्पी बीइंग, मैं खुश हूं जो है। पहले तो एक्सेप्ट ऑल एज दे एज, एक्सेप्ट योरसेल्फ एज वी आर, जैसा मैं हूं, परमात्मा ने मुझे जैसा बनाया है। व्हाट इज वी हैव, जो कुछ मेरे पास है। एटीट्यूड ऑफ द एटीट्यूड, जो कुछ हमें मिला है, भगवान ने दिया है, उसमें मैं खुश हूँ। खुश रहते हुए अब आपको काम करना है। देन यू हैव टू अचीव, तब आप अचीव करेंगे मटेरियल के लिए। तो खुशी को तो बरकरार रखना, मटेरियल के लिए काम करना है। तो खुशी खो नहीं पाए उसके लिए भी एफर्ट करना है। और तो ये, और व्हाट आर द अदर चैलेंजेस? ये जो चैलेंज है, ब्लॉकिंग सिस्टम बाय अदर्स, ब्लॉकिंग स्टेटमेंट। आप मतलब आप अच्छा, ब्लॉकिंग मतलब कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, जैसा आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, आपने ऐसे स्टेटमेंट बोल दिए कि आपका आगे वाला व्यक्ति कुछ बोलता ही नहीं, चुप हो जाए। ब्लॉकिंग, आपने सिस्टम को ब्लॉक कर दिया। लेबलिंग बाय अदर्स, लेबलिंग में कहते तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो हो ही गमार, तुम तो हो ही अनपढ़। तो लेबलिंग करने पे भी आपके जो ये लेबलिंग, जब कोई लेबलिंग करता है, आप अनपढ़ हो, आप तो गमार हो, तो आपका हैप्पीनेस फ्लो होना बंद हो जाता है। तो इसको ओवरकम भी दी आर द चैलेंजेस, इन चैलेंजेस से भी ओवरकम हमें आना चाहिए। अगर कोई लेबलिंग कर रहा है तो हाउ वी आर नॉट अफेक्टेड, अदरवाइज मोस्टली तो अफेक्ट होंगे। जब मान लो सपोज करिए हमने इनको कहा कि भाई किसी को कह दिया मयंक को आप तो गवार हो, तो क्या होगा? मिस्टर मयंक, आर यू लिसनिंग मी? मयंक? यस सर। हाँ, सपोज करिए मैंने आपसे कहा आप तो अनपढ़ गंवार हो,
इससे हाँ आपकी जी सर। हैप्पीनेस में फर्क पड़ेगा? सर फर्क नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा, गवार क्यों है सर। हाँ, फर्क तो पड़ेगा ही। तो हाँ ये जी। लेकिन फर्क नहीं पड़े, फर्क ना पड़े, वो स्ट्रेंथ अगर आपके अंदर, वो अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि अगर आपका हैप्पीनेस अगर कम हुई तो आपका एफिशिएंसी पुअर हो जाएगी, एफिशिएंसी पुअर हुई तो आपको आप ग्रोथ करने लग जाएंगे, एफिशिएंसी पुअर हो जाएगी, जो आपको आउटपुट चाहिए था वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए लेवलिंग से अफेक्ट ना हो, ये भी चैलेंज है। कैसे, हाउ इट हैपेंस कि मुझ पे कोई लेवलिंग भी करे तब भी अफेक्ट ना हो। सिमिलरली ब्लेमिंग, कोई आरोप लगा दे कि भाई तुम चोर हो, लेकिन आप एक्चुअली में आप चोर नहीं हो और किसी ने ब्लेम कर दिया, तो जब आप पे ब्लेम कर दिया तो उसका भी इफेक्ट, जैसे मान लो आप हो ऑनेस्ट हो, किसी ने कहा भाई तो चोर है, तो क्या होगा? नॉर्मल वे में ऐसे ही होता है, नॉर्मल वे में ऐसे ही होता है कि आपको गुस्सा आएगा, या आप जा रहे हो एग्जाम देने के लिए और किसी ने कह दिया भाई ये चोर है, और पता लगा आपका मूड खराब हो गया, आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम में अफेक्ट होने लगी। तो लेवलिंग का भी कोई असर नहीं पड़े। अपने आप को कैसे ऐसा बनाना है कि हम ये कहते हैं ना, हमारी जो इंटैक्ट है, एनर्जी है, जो इनर हमारी हैप्पीनेस है, वो लूज नहीं होना चाहिए। वी आर ऑलरेडी हैप्पी, बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो हमारे हैप्पीनेस को क्या कर रही हैं? इंटैक्ट नहीं रहने दे रही, हमसे छीन रही हैं। तो हमें अपने हैप्पीनेस को कैसे बरकरार रखना है, उसको लीक नहीं होने देना है। मीन्स किसी ने ब्लेम कर दिया, चोरी का आरोप लगा दिया, फिर भी हम कोई असर ना पड़े, ऐसी स्ट्रेंथ कैसे डेवलप हो? कैसे हम, जैसे संत महात्मा होते हैं ना, उनसे कोई कुछ भी कहता रहता है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता, रियल सेंस में अगर है तो ये क्वालिटी है। जजमेंटल इज अगेन कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है। एक्सपेक्टेशन आपने देखा ही है, एक्सपेक्टेशन ऑलवेज गिव हैप्पीनेस। पास्ट एक्सपीरियंस से भी हमें दुख होता है कि पहले ऐसा घटना हुआ था, बार बार उसे देख के भी बार बार आप अपनी पास्ट को सोचते हैं, फिर आप परेशान होते हैं। एरोगेंसी कि भाई मैं सब कुछ कर लूंगा। तो ये चैलेंजेस है। फियर ऑफ अनसक्सेस, पता नहीं क्या होगा, फियर ऑफ अनसक्सेस, तो दीज आर द चैलेंजेस। इससे आपकी खुशी गुम हो जाती है। आप खुशी गुम हो जाती है तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अच्छा परफॉर्म, देखिए एक एग्जांपल, आप क्लास को कितनी देर कंटिन्यू रखना है भाई, उसी के हिसाब से मैं थोड़ा वाइंड अप करूंगा। एनीबडी? सर 10 बजे तक लास्ट है। नहीं, 10 बजे तक आप पढ़ सकते हैं, अभी टाइम आधा घंटा है। उससे पहले करना चाहते हैं तो पहले भी कर सर सकते हैं। शायद 9:30 बजे हो सकती है सर, प्रोडक्शन वालों की क्लास सर हमारी। हाँ, नहीं क्लास की बात नहीं है, आपके क्लास 10 से पहले तो 100% कर ही दूंगा, लेकिन एक इच्छा, बैठने की इच्छा की बात है। कुछ लोग अगर जल्दी जाना चाहते हैं तो जल्दी भी खत्म की जा सकती है। सर वाइंड अप करते हैं, शायद 9:30 बजे हम लोगों की क्लास हो सकती है। हाँ, क्लास सर इनकी प्रोडक्शन होना। हाँ, चलो मैं 5-10 मिनट में वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपको पता लगा, दीज आर द चैलेंजेस। नाउ क्वेश्चन, ये चैलेंजेस पता लग गया कि भाई इससे हमारी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। ये मैं अभी फिर बाद में कभी बताऊंगा। हाउ द परफॉर्मेंस, इफ यू हैव द फियर ऑफ अनसक्सेस, तो उससे परफॉर्मेंस कैसे अफेक्ट हो रही है, एक एग्जाम्पल लेके बताना चाहता था, बट वी विल डिस्क्राइब दिस लेटर। परिणाम क्या क्या होते हैं अगर आपको पॉजिटिवनेस है, तो क्या अगर आप डिप्राइव फील कर रहे हैं तो हैप्पीनेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और ये जो चैलेंजेस हैं, हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, उन चैलेंजेस से कैसे ओवरकम आए। जैसे आप पे ब्लेम किया था, जैसे अभी कहा, आप पे ब्लेम कर दिया मैंने कि भाई ये तो चोर है, या ये तो क्या एक लेवलिंग क्या किया था मैंने, अभी कुछ कहा था, गवार है। हाँ, तो उसका परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ रहा था। हाउ टू ओवरकम दी चैलेंज, जो ये टाइप के चैलेंजेस हैं उनको हम कैसे ओवरकम कर पाए कि मुझे इन चीजों का कोई फर्क ना पड़े और मेरी परफॉर्मेंस अफेक्ट ना हो, और जो मैं मटेरियल के फॉर्म में
अचीव कर पाना चाहता हूँ वो भी करता रहूं और हमारी हैप्पीनेस बरकरार रहे, तो उसको हमें अब समझने की जरूरत है। पहले तो क्लैरिटी हो गई, हैप्पीनेस एंड मटेरियल बोथ आर डिफरेंट, उसके लिए काम करना है, हैप्पीनेस को बरकरार रखना है, मटेरियल को अचीव करना है, ये हमारी टारगेट हो गया। अब उसके बीच में जो चैलेंजेस आएंगे उनको कैसे ओवरकम करना है और रियल हैप्पीनेस होने के क्या क्या कीज हैं, व्हाट आर द की पॉइंट ऑफ रियल हैप्पीनेस, वो हम स्टडी करेंगे। तो एक ये इस फिगर के साथ, और ये देखिए हैप्पीनेस इज इन एटीट्यूड, ये फिगर क्या बताता है, व्हाट इज दिस, ये फिगर क्या बता रहा है? हैप्पीनेस इज इन ये एटीट्यूड। देखिए ये है तो गरीब आदमी और कहाँ सड़क पे बैठा हुआ है, लेकिन वो फीलिंग कल्पना क्या कर रहा है, ऑफिस में बैठा हुआ है, सोफा के ऊपर बैठा है, आराम से टेबल पे पैर रखे हुए है, और ऑफिस के अंदर जो सारी चीजें हैं ये इसके कल्पना में है। तो ये ही इज फीलिंग द हैप्पी, है बैठा है जमीन पे लेकिन हैप्पी फील कर रहा है। तो हैप्पीनेस इज इन एटीट्यूड, और वी शुड हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। मतलब क्या है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड? भगवान ने जो हमें दिया है उसको हम उसके प्रथम कैसे अपना नजरिया, क्या पॉजिटिव नजरिया कैसे रखें। तो मन स्वीकार कर ले वही सुख है, मन को ट्रेनिंग दे कि मन हर परिस्थिति को स्वीकार। अब देखिए अब ये पता लग गया हैप्पीनेस इज द इनर, माइंड से रिलेटेड है, और माइंड